Hello, friends across the world. Welcome to our podcast channel and podcast episode number 4, जिसमें हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही हॉट टॉपिक है एंड यू नो हाउ इमिग्रेशन हैज़ चेंज्ड। एंड मेरे साथ इसके लिए आई हुई हैं एंजल जो ऑल्सो नोन एज अमनप्रीत कौर एंड शी इज़ अ लवली लवली पर्सन एंड शी इज़ गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट her experience in Ontario, in Brampton, in Canada. I'll talk about Scarborough, Ontario, and she'll talk about other part of the Ontario. Yeah. So thank you so much, Taraji. I am really excited to be here and sharing some thoughts of mine, experiences of mine, and I'll also try to provide you some solutions for that. Not only the problems we'll be talking about in this podcast, right, Taraji? बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशन अगर एज अ स्टूडेंट एज अ यंग जनरेशन आप देंगे जी तो कितना हेल्पफुल रहेगा उनको, क्योंकि आप गो थ्रू कर चुके हैं, जी तो इसलिए आप रियलिटी चेक दे सकते हो जी उनको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस की है ना वो कोई और ना करे, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स nowadays. So we'll talk about that. Starting about, I came here as an international student in 2022 May, and I used to work initially 2 jobs for the survival. I used to get a very little time for my sleep, 5 to 6 hours roughly. काम भी करना है, सर्वाइवल भी करना है, जॉब्स भी करनी है. You know, you have to pay the fees, you have to also support your family, and यहाँ पे living expense, it's growing over and over with the time, right? Yeah. I believe you can share this experience कि how it was when you came, what was the rate, inflation rate, and how was the grocery and everything, the rent? How was it? सिंपल एग्जांपल देती हूँ। गैस 40 सेंट लीटर था। Oh my God. You're बताइए, talking about in 2005-2006 में okay. जब हम आए अप्रैल 2005, तो उस टाइम पर गैस 35 सेंट, 38 सेंट, 40 सेंट्स होता था और लोग जो है पानी की तरह यूज करते थे, ऑब्वियसली, राइट? Yes, obviously. एंड देन वो जो है एक लो ब्लॉस में ब्रेड लेने जाते थे तो नो फ्रिज में दूध लेने जाते थे, तो और शॉपर्स में जाके अंडा सस्ता है तो वो लेके आते थे। ये हाल था। So she's basically talking about different stores. या सो शॉपर्स ड्रग मार्ट हमारे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के लिए स्पेशल है, तो फिर उसे नो फ्रिल्स और जो लो ब्लॉस है वो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बड़े सुपर स्टोर्स। सो वही उधर उस टाइम ब्रेड हमें $1.5 का मिल जाता था। Oh my God. आज $5-6 Five, का yeah. एक पैकेट ब्रेड आता है। Yes, yes, Right? yes. तो बताइए आप कैसे आए, मतलब आपका एप्लीकेशन आप थ्रू एजेंट आए कि खुद डायरेक्ट आए? Yes, I was through an agent because my age was almost around 25, 26. So everyone was like hit and trial, but there was one agent. तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपका हो जाएगा, like you'll be done. And I was like मेरे को अपनी स्टडी नहीं छुपानी, right? Because पढ़ाई, मुझे नहीं लगता पढ़ाई कभी भी ख़राब हो सकती है एंड छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. सो इफ़ यू आर you're looking for you want to come here and you feel like कि मैं अपना कुछ हाइड करके आ जाऊँ, don't do that. Because if the immigration, they'll get to know that, they will, you know, they will ban you. I think they right away, you know, for the Application misrepresentation. Yes, so don't do that. Yeah. यहाँ पे आके when you do hard work, I won't say struggle, just keep it hard work. When you do hard work, everything is destined, your success is destined, you will reach where you want to reach. But you have to come here with the mindset that I am going there, I want to work hard, and then only I will be achieving the dreams I am having in my mind, not with the comfort phase. What do you say about this? हाँ, तो जैसे लोग आते हैं, मैं खुद भी जब आई 2005 में तो मैं सोची यूएस के पास है कनाडा, तो यूएस जैसा होगा, उसका मार्केट इकोनॉमी वैसा होगा, ओपन मार्केट होगा जैसे यूएस का है, और मैं जो है 1 साल में इतना कमा लूँगी तो मैं इतना पैसा जोड़ सकती हूँ और इतना ये कर सकती हूँ, इतना वो कर सकती हूँ। नो, कनाडा इज़ सो मच डिफरेंट फ्रॉम यूके। इवन दो यहाँ पे यूके का रूल था, रानी का रूल था, अब जो है किंग चार्ल्स का रूल है। यस, अभी भी हम लोग उनके अधीन है, ये कनाडा उनके ही अंडर में है। उनके जो हमारे नोट है, कनाडा के नोट में राजा और रानी के फोटो हुआ करते हैं, जो यूके के किंग और क्वीन है। तो क्वीन तो अभी नहीं रही, लेकिन अब किंग का सब चल रहा है। एंड देन वी टॉक अबाउट यूएस। तो या यूएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि हम उनके साथ ट्रेडिंग पार्टनर होंगे, लेकिन हमारा ना इकोनॉमी उनसे मिलता है ना कुछ। कनाडा का इकोनॉमी बहुत क्लोज्ड है, तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, बिजनेस बहुत कम है, इंडिया की तरह स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत जी कम है। जी जी
I Correct? truly agree. Yes, I Yeah. truly agree. लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री है। आप रेस्टोरेंट्स खोल सकते हो, Yes. आप टूरिज्म कर सकते हो, Yes. कनाडा पोस्ट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, या फिर गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, या हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो, नर्सेस, PSWs। Because labor is expensive, right? Yeah. अब वहाँ पे चाइना में, इंडिया में, why do these people, these countries, they prefer importing stuff, right? क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है, तो ठीक है वहाँ से कर लेते हैं. अब दे आर सर्चिंग यहाँ पे भी लेबर सस्ती हो, कम पे कम पे कम पे काम हो, बट नो योर वर्थ, वर्क अकॉर्डिंगली. इफ यू नो यू आर वर्दी, यू डिजर्व मोर, स्टेप आउट. डोंट जस्ट कीप सिटिंग कि ठीक है ये जॉब है मेरे पास, अच्छा चल रहा है, सर्वाइवल हो रहा है. नहीं, बाहर निकलो. इट्स फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इट्स अ ड्रीम लैंड. इफ वी कॉल इट अ ड्रीम लैंड, वी कम हेयर कि हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो बाहर निकल के सपने पूरे करो. जब इंडिया से यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर यहाँ से बाहर निकलने में क्या प्रॉब्लम है? आपको ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको हराएगा. The जी. system will beat you. Everything is against Exactly. you. ठीक है, Yes. हर चीज एडवर्स है, लेकिन आपने क्या करना है, हौसला नहीं खोना है. जैसे मैं जब आई तो मैं एज ट्रेन्ड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की पोजीशन से आई थी. उस टाइम डिमांड था एज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, विच इज अ डिक्टा टाइपिस्ट, यानी कि डॉक्टर के डिक्टेशन को सुन के टाइप करना. इंडिया में बूम था. इंडिया छोड़ के मैं कनाडा आई, और यहाँ पर मैंने जब गई तो मेरे को जॉब पता नहीं कहाँ ढूंढना है. एक तो यहाँ पर हिडन जॉब मार्केट है, राइट. यहाँ पर Yeah. कोई भी जॉब आपको न्यूज़पेपर में, वर्कोपोलिस में, इंडीड में नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. इजीली बहुत लिमिटेड मिलता है. Yeah. बाकी सब हिडन मार्केट. हिडन मार्केट मतलब वर्ड ऑफ माउथ, Yes. कि यार अमन कोई है तो बताना, Reference. और जो है सुमन कोई है तो बताना. Yes. यही चलता है यहाँ पर. तो इसलिए हु यू नो का बिजनेस है, और आप तक वो जॉब पोजीशन पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि आप है न्यू. ना तो आप किसी अमन को जानते हैं, ना किसी सुमन को जानते हैं. correct? तो फिर इसलिए आपको जो है पूछते रहना है कि यार ये जॉब कैसे मिलेगी, मैं इस लाइन का, ये जॉब कैसे. यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स सेंटर्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं. YMCA जा सकते हैं, यहाँ YWCA नहीं है. यहाँ पे YMCA है जो आपको जॉब ढूंढने में हेल्प करता है. जॉब काउंसलर्स हैं यहाँ पर, सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं. तो जब मैं 2005 में आई एज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, किसी को नहीं पता था ये क्या है, बिकॉज दे कॉल्ड इट डिक्टा टाइपिस्ट एंड आई केप्ट सेइंग मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट. Yeah. फिर मेरे को वो मैंने कहा चल मैं मेडिकल सेक्रेटरी का कोर्स कर लेती हूँ, जो मेडिकल ऑफिस में बैठती है. वो कोर्स करने गई तो कॉलेज वाली कहती है, जो है वहाँ पर रिसेप्शन कम ओनर कम पार्टनर, कहती है आप PSW का कोर्स कर लो, मैं उसमें गारंटी देती हूँ जॉब की. अब मेडिकल सेक्रेटरी करोगे तो मैं जॉब गारंटी नहीं दे सकती. अभी क्या है कि वो ओनर PSW पढ़ाता था, और वो चाहता था कि वो फीस Oh उस my ओनर को चली जाए. God. Oh my God. 3500 उस टाइम पर उधार में, आप राइट अवे कोर्स उधार में कर सकते हैं. तो हमने उधार में वो कोर्स किया, लेकिन जैसे ही आपकी फर्स्ट सैलरी स्टार्ट हो जाएगी आपको देना शुरू कर देना होता है. तो जो है अभी मैंने PSW कोर्स कर लिया, लेकिन जब मैंने कोर्स ख़त्म किया, मेरा लक देखिए, PSW कोर्स मैंने ख़त्म किया, देखा तो टोरंटो स्टार उधर कॉलेज में आता था. मैंने उसमें जॉब ढूंढ रही थी, और उसमें डिक्टा टाइपिस्ट का जॉब था. Oh. अभी डिक्टा वो जॉब मैंने देखा, और मैंने जाके इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया. एक्चुअली उसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 जॉब थी. Wow. अभी मैंने एक जॉब अप्लाई किया, वहाँ मेरा हो गया. Wow. Great. वो बात दूसरी है, वो हम फिर एपिसोड में दूसरे में बात करेंगे कि वो क्यों नहीं मैं रख पाई जॉब. बट द पॉइंट इज कि डोंट बिलीव इन व्हाट दे से. जैसे कॉलेज वाली ने मुझे कहा कि तुम PSW ही करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब नहीं दे. जॉब बहुत है, आप कोर्स करो और अच्छे उससे कोर्स करो और प्लेसमेंट मांगो, ठीक है. और कोई कॉलेज का कोर्स ऐसा मत करना जिसमें प्लेसमेंट ना दे रहे हो. कनाडा आने की ऐसी बिल्कुल गलती मत करना जिसमें प्लेसमेंट ना मिल रहा हो. वो कोर्स में अप्लाई करना जो आपको प्लेसमेंट दे. अगर आप सोच रहे हो कि एजेंट बोल देगा प्लेसमेंट मिल जाएगी, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक पोजीशन के लिए 500,000 बच्चे हैं. जैसे your takeaway from your talk was PSW, जैसे आप कह रहे हो, राइट. आजकल PSW कितना फेमस हुआ है, या भाग रहे हैं लोग, जॉब्स कर रहे हैं उसके लिए. बट सेइंग दिस, आपको हर एक सिनेरियो से डील करना है PSW करने के लिए. एवरी पर्सन, ओल्ड हो, बच्चा हो, सब, एवरी यू हैव टू टेक केयर. आप देखो, आप अपनी टेक केयर कर सकते हो. जो आप जॉब के लिए आप देख रहे हो कि आप किसी की टेक केयर करोगे, वी आर ओनली डूइंग फॉर सर्वाइवल. तो एज शी सेड, लुक आउट. डोंट मेक एनीवन्स ओपिनियन योर लाइफ, राइट. कॉम्प्रोमाइज मत करो. हाँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, डू द थिंग्स फॉर सर्वाइवल, बट कीप हंटिंग फॉर द थिंग्स यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ फॉर. मैं भी जब आई थी, इट टुक मी टाइम
to be in a place where I'm right now. I'm leading a blessed life right now, but it took me time. I had to go through the survival phase as well, right? Ups and downs are a part of life. Just remember this thing. एंड आई थिंक जो आपने बोला है ना एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी को हमें रोड टू सक्सेस बनाना चाहिए. वी शुड एम्ब्रेस, वी शुड चैलेंजेस एम्ब्रेस करना चाहिए, बिकॉज जो ग्रोथ होती है इट्स ऑलवेज आउट ऑफ कंफर्ट जोन. व्हाट डू यू से अबाउट दिस? वो तो है, जब तक आप कंफर्ट से बाहर नहीं आएंगे ना, आप वही सैलरी में, वही जॉब में, उसी में ही रहेंगे. जैसे मैं 2005 में आई, मैं PSW थी, लेकिन क्या मैं PSW रहना चाहती थी? आप अपने कंट्री से पढ़े लिखे क्वालिफाइड आते हैं और आपको किसी का पॉटी साफ करना पड़े, आपको कैसा लगेगा कि आप क्या इसलिए आए हैं? Yep. ठीक है, वो बुजुर्ग है, मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन क्या वो है आपका जॉब? नो. आप किसी को श्रद्धा से करना, मजबूरी में करना अलग बात है. तो Different ये याद things. रखना कि PSW टीयर जॉब होगा, लेकिन आपने उस एल्डरली को ठीक से ट्रीट नहीं किया तो आपकी कंप्लेन भी हो सकती है और आपको हमेशा के लिए बार भी कर सकते हैं और हो सकता है डिपोर्ट भी कर दें, राइट? क्योंकि एल्डरली अब्यूज माना जाता है. तो अगर उसका डायपर टाइम पे चेंज नहीं हुआ, अगर उस उल्टी किया है, उसका उल्टी साफ नहीं किया, ड्रेस चेंज नहीं किया, यू हैव सो मच प्रॉब्लम, राइट? सो एडवर्सिटी का कैसे फेस करना है? मैं PSW में नहीं रही, मेरे को और हो रहा था कि आई वॉन्ट टू रीच वेयर आई वॉन्ट टू रीच. आई वॉज अ डिक्टर टाइपिस्ट, राइट? तो फिर उसके बाद मैंने वो जॉब किया. फर्स्ट जॉब मेरा सक्सेसफुल नहीं था, देयर वाज सम इशू, एंड देन आई went back to PSW and then I tried again for dictator typist position and then I got a job. तो बहुत ही अच्छा जॉब था जिसको मैंने 2005 में जो स्टार्ट किया 2008 तक किया. मैं डिक्टा टाइपिस्ट गई और मेरे को उनका मेरा काम इतना पसंद आया कि आई वॉज बिकेम QA मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन. उनके रिपोर्ट्स को एडिट करना, राइट फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट पेज तक जो अपेंडिक्स होता है वो पूरे उनके रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज कंपाइल करके. एंड देन यू थिंक दैट वाज माय गोल? नो, क्योंकि जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर आता है वो एक एडमिन असिस्टेंट है. वो भी एक नॉट द वाइट कॉलर जॉब बट इट इज़ काइंड ऑफ लाइक एडमिन जॉब. और उसमें इतनी रेस है, इतना कंपटीशन है कि कल को आपकी जॉब चली गई तो एडमिन असिस्टेंट का जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई एडमिन असिस्टेंट है, राइट? जो BA करके आ रहा है, BCom करके आ रहा है और MSc करके आ रहा है और बाहर से कंप्यूटर कोर्स करके आ रहा है, सब वही है. तो इसलिए मैंने कहा अब मैं क्या करूँ. तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई, मैंने रिज़ाइन कर दिया. बताइए, कनाडा जैसी जगह पे मैं कोई रिज़ाइन करता है? मैंने रिज़ाइन किया, कंप्यूटर कोर्स अपग्रेड किया. उस टाइम पर फ्री में लेडीज़ को जो अंडर प्रिविलेज होते हैं उनको फ्री में कंप्यूटर कोर्स सिखा रहे थे. तो ये मेरा लक था कि थ्रू IBM देयर वाज दिस कोर्स बीइंग ऑफर्ड टू वुमेन हु वर नॉट वर्किंग. मैंने कंप्यूटर कोर्स अपग्रेड किया और फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया. 2000 to 3000 रेज्यूमेस मैंने भेजे होंगे फॉर क्लेम्स असिस्टेंट. Oh my god. In 1 year. It took me September 2008 to February 2009 I got the job. Oh my god. But the good thing is I had worked enough hours to get employment insurance. Yeah, this is the best thing here. Yeah. So the good thing is Yes. definitely contribute to EI. अगर आप अपने बिजनेस भी करते हैं तो आपको EI को गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बैड टाइम में, कोविड टाइम में आपको हेल्प करता है, राइट? Yes. तो फिर मैंने जो है क्या बनी, फिर मैंने कहा कि मेरे को क्लेम्स असिस्टेंट नहीं रहना, एडमिन असिस्टेंट नहीं रहना, मुझे एडजस्टर बनना है. फिर मैंने एडजस्टर बनी. एडजस्टर इज वाइट कॉलर जॉब एंड यू हैव बेटर लाइक यू फील सेटिस्फाइड. दैट्स व्हाट मेड मी सेटिस्फाइड, राइट? जैसे अभी अमन को क्या सेटिस्फैक्ट्री है, देखते हैं उसको क्या मिला, जो उसको एक सुकून मिला, राइट? So the thing is, first takeaway from your talk was the thing you might be feeling, guys, we are not scaring you. कि PSW में ऐसा होता है या स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है, कुछ भी नहीं. जस्ट बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर कमिंग हेयर. जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि वहाँ पे स्ट्रगल है. आई हैव टू फेस इट, आई हैव टू सर्वाइव देयर बिकॉज आई हैव टू अचीव बिग. ठीक है, ये मत सोच के आओ कि सब कुछ बहुत ईजी है. ईजी इज़ नथिंग. कुछ भी बड़ा अचीव करना है, एवरी मिलियनियर, एवरी बिलियनियर, जस्ट टॉक टू देम. They have done a lot of challenges, they have failed a lot of times. If I tell you you're 50 failures away from your success, how fast you would like to fail? So don't, I feel that this personally, कभी भी डरो मत, right? Don't get scared कि हो मैं क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं. If I ask you just before answering my question, how many times did you quit your job? You resigned from your job. Every job I resigned. And you get the better positions. Yeah, to get better position. So you get the better positions when you get out of the comfort zone.
तो ये मत सोचो कि हमें वहीं रहना है क्योंकि ओके है, नहीं, आप आगे तभी बढ़ोगे जब आप आगे देखोगे चल के। और मुझे किस चीज़ में सुकून मिला, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी टॉकिंग टू पीपल। मैं ऐसे ही काम करना चाहती थी, ऐसा काम करना चाहती थी जिससे मैं बात कर सकूँ लोगों से, ठीक है। आई वर्कड इन अ रेस्टोरेंट, आई वॉज अ सुपरवाइजर देयर, वहाँ पे भी आई यूज टू कम्युनिकेट, आई मेड अ great links there. I am blessed for that life as well, that I could manage everything, my fees, I could support my family, I could support myself, which right now a lot of students are struggling because एक के पीछे एक लग के आ रहे हैं, पर देखो कहाँ पे जॉब्स हैं, कहाँ पे स्कोप है, जस्ट गो फॉर इट, डोंट ओनली गो फॉर वन काइंड कैटेगरी ऑफ जॉब्स, राइट। एक मिनट, जब ये कह रहे हैं कि आई कैन सपोर्ट माई फैमिली, तो ये फैमिली अपने इंडिया की बात कर रही है, जैसे दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यस, अपने पेरेंट्स से पैसा लेके या पेरेंट्स उधार लेके, जमीन बेच के, घर बेच के, कुछ भी करके, यस, उसी तरह ये भी उनमें से एक थी जो अपने बिल्कुल पेरेंट्स के पैसे लेके आई थी, जी, और इनका फर्ज है अब अपने पेरेंट्स को पैसे वापस भेजना, क्योंकि उनको बिल्कुल, तकलीफ में रखने का कोई हक नहीं है हमको, करेक्ट। एग्जैक्टली, यू हैव तो टू ये सपोर्ट वो योर कह रही है, पेरेंट्स, तो इसलिए यस। इसने वो एम किया कि आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम पेइंग बैक, राइट। यस, आई यूज टू टेल, आई रिमेंबर दैट कि मुझे जितना मर्जी काम करना है पर मैं अपने पेरेंट्स को ना नहीं कह सकती, राइट, व्हेन आई Correct. फील लाइक देयर इन नीड। एंड जब आप बाहर निकल के काम करते हो, दिस इज द ओनली थिंग यू कैन गिव बैक, आई थिंक। Yeah. और मुझे यही, आई कैन सर्व पीपल। सो PSW वाली बात भी यही कर लेते हैं, इफ़ यू हैव समथिंग, आपको लगता है आप सेवा भावना से उस चीज़ को कर सकते हो, जॉब को करो आप, मोर देन वेलकम। पर आपको लगता है नो, यू आई कैनॉट डू दिस, तो दिस इज नॉट फॉर यू, जस्ट डू इट फॉर सर्वाइवल फॉर सम टाइम, इफ यू रियली वांट टू, इफ यू रियली हैव टू एक्चुअली, देन गो फॉर समथिंग एल्स, राइट। मुझे सुकून मिलता है अच्छा गाइड करके, मोटिवेट करके, सिंगिंग करके, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग, आई एम डूइंग इवेंट्स एंड आई एम मीटिंग पीपल लाइक तारा जी, Yeah. आई एम डूइंग ग्रेट। Tarak. So the another topic I wanted to touch here, Tharaji, was like we have seen a lot of people, they are getting closed-minded, they're getting depressed. Why is the reason? And after this, we'll be winding up. या तो मेन थिंग यही है कि जैसे आप आते हैं और जब आपको लगता है कि जैसे आप अपनी कंट्री से डॉक्टर होके आए हैं, राइट, और अब आप देखते हैं ओ माय गॉड यहाँ पर तो डॉक्टर का अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, मतलब कि 10-10 साल तक लोग एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम से एग्जाम देते जा रहे हैं, एंड दे गिव अप। वो कहते हैं यार मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, यार मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं क्या करूँ। सोचिए ना, 10 साल में अगर आप एक 10 साल के बच्चे के साथ आए थे, वो तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में चला गया, तो आप कहेंगे अब मैं करके क्या करूँ। तो नहीं, यू कांट गिव अप। अगर आप डॉक्टर आए थे या आप जो भी प्रोफेशन आए थे, इंजीनियर आए थे, मैं बता दूं आपको, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, कोई भी यहाँ पर आता है, इट इज़ नॉट ईजी टू गेट अ जॉब। सिविल इंजीनियर यू कैन स्टिल गेट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहे हैं, यहाँ पर कॉन्डोमिनियम्स बहुत बन रहे हैं, एनी वेयर इन कैनेडा यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी की रोडवेज बन रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एज अप्रेंटिस स्टार्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि डोंट गिव अप एंड डोंट बी क्लोज माइंडेड कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और अब मैं इंडिया कैसे जाऊँ, क्या मुंह दिखाऊँ, और मैं लोन लेके आ गया तो मैं इसी में ही रहता हूँ। नहीं, चेंज करो। क्योंकि आपने भी देखा होगा, मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 15 years, 20 years, 25 years, and when we ask them for their experience, there are very few people who will say that it's good. Otherwise, ठीक है, ओके है, नो। क्यों नहीं बनाया अपनी लाइफ को वैसा कि आप कहो नो, इट वाज गुड, आई वाज ग्रेट, मैंने हर एक चीज़ ट्राई की जो मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी। बिकॉज व्हेन लाइफ इज़ इन योर हैंड्स, जब आप यंग हो, 30, 40, 50 ईयर्स तक आप सब कर सकते हो, राइट। एज इज़ जस्ट अ नंबर, आई थिंक। आप में पैशन होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए कि आपने कुछ करना है। सो आई वॉज लुकिंग टू वन पॉडकास्ट, आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ पॉडकास्ट, and there's a lady of 74 years old. She started her YouTube channel through for the cooking, and she's doing great now. Yeah, even 74 years पे अब वो सोच Yeah. रही होगी क्या करना है, बट नहीं, राइट, ड्राइव होनी चाहिए। एग्जैक्टली, जिंदा कहते हैं ना, जिंदा तो जिंदा सब दिली, रहते हैं, जिंदा दिल ही चाहिए। जिंदा तो दिली, अपने दिल में वो आग बरकरार रखिए, Yes. अपने पेट में वो आग और शोला बरकरार रखना है, Yes. उसको बुझने नहीं देना है। जैसे मैंने बुझने नहीं दिया, मैंने हर हाल में क्लेम्स एडजस्टर बनी, मैं हर हाल में जो है अब यूट्यूब और पॉडकास्ट कर रही हूँ, और मेरा ये ड्राइव है, पैशन है कि आई हैव टू डू समथिंग। आई एम आई हैव बीन क्लेम्स एडजस्टर 20 years, बट मैं सिर्फ उसमें नहीं रुकना चाहती। जब आपके पास वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वर्ल्ड ऑफ थिंग्स है, तो क्यों नहीं, राइट। आपको लगता है कि मैंने 2008 में जो है रिज़ाइन किया तो मेरे को मज़े आए, नहीं।
उस टाइम पर 2008 में जब मैंने रिजाइन किया ना, आई फेल्ट आई वाज द मोस्ट सेल्फिश पर्सन ऑन अर्थ, यू नो, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी और मेरे को उस टाइम डॉलर स्टोर का टॉय भी महंगा लगता था, ठीक है, और हमारी आदत थी हर फ्राइडे डॉलर स्टोर जाना, उसके लिए कुछ लेना और फिर मैकडोनल्ड्स या रेस्टोरेंट में खाना और फिर आना। हमारा फ्राइडे इवनिंग पार्टी इवनिंग होता था। ओके। लेकिन वॉज इट ईजी? नो। लेकिन तब मैंने कसम खाया कि मैं ऐसे रिजाइन नहीं करूंगी अनलेस मेरे पास दूसरा जॉब है। तो ये आपने समझदारी करनी है जो मैंने नहीं करी, कि दूसरा जॉब हाथ में रख के अपॉइंटमेंट लेटर लेके फिर आप छोड़िए। So it was worth it and it was a learning for you. It was worth it. Yeah. The It journey was was, worth yes. it. Was it kind? No. Not in any step. You think claims adjuster was easy? No. I wanted to be promoted. Then what to do? Promotion नहीं हो रहा था, आप क्या करोगे? Quit करोगे। लेकिन दूसरा जॉब हाथ में लेके senior position, better pay. Yes, learning with the learning because she learned from one mistake कि अब next job भी होगा job. Learning कभी नहीं रोकना। जब मैंने यहाँ आना था तब मुझे सब ने कहा यार अब भी पढ़ाई के बेस पे जाना है, पढ़ना है अभी भी जाके। Never stop learning. I will never stop learning in my life. कुछ भी करना हो ग्रोथ के लिए, I will always keep doing, keep learning for growing because I know I have to achieve big and so do Tara ji. यहाँ पर एक जॉब से काम नहीं चलता, ये भी सोच लें। अगर आपके पास एक मेन जॉब है तो आपको एक दूसरा जॉब होना चाहिए। Yes. और वो मेन जॉब के लिए भी मैंने जो है चार्टर्ड इंश्योरेंस प्रोफेशनल का कोर्स किया एडजस्टिंग का, उसके बाद बेटर होने के लिए लीडरशिप रोल के लिए फेलोशिप कोर्स किया इन चार्टर्ड इंश्योरेंस प्रोफेशन। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को ऑन द साइड कुछ चाहिए तो HLLQP लाइफ इंश्योरेंस का कोर्स किया। इसके अलावा कनाडा आते PSW का कोर्स किया। उसके अलावा लगा कि यार बीच में जॉब नहीं है, यार एक सिक्योरिटी जॉब का कोर्स भी कर लेते हैं। उसका लाइसेंस भी लेके मैंने रख लिया कि कब यहाँ पर लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। Yes. तो अगर आपके पास इतने लाइसेंस और इतना कुछ है ना, तो आपको फॉल बैक होने के लिए, आज जॉब चली जाए तो फॉल बैक होने की चिंता नहीं, नेक्स्ट राइट अवे लाइसेंस रिन्यू कीजिए, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब लग जाएगी। सही बात है, ठीक, बिल्कुल। तो इसलिए एक बैकअप रखिए, ड्राइविंग सीखिए, सब कुछ जो स्किल्स आपको चाहिए। यहाँ पे उबर का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये जो गिग है ये यंगस्टर्स के लिए ही अब अच्छा हो गया है। यंगस्टर बोले तो कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑन द साइड फूड डिलीवरी कर रहे हैं, उबर ईट्स कर रहे हैं, उबर डिलीवरी, उबर ड्राइव कर रहे हैं। And if you have passion, guys, build something of your own. Yeah. Build your business. Start from scratch. Yeah. होने दो startups fail होने दो. Yeah. Let it fail. Yeah. कितने fail हो जाएंगे? जितने लोगों के the guy who made bulb, he did a lot of times, right? 1,000 times or something. Yeah. He finally did. Aeroplane. हमारा भी होगा. Yeah. Right. A lot of Aeroplane के वो जो examples. brothers थे, Yeah. तो कितनी बार तो गिरे बेचारे, छत से उड़ते की कोशिश करते थे, right? जी. हड्डी भी टूटी होगी। Oh yeah, obviously. Was it a smooth journey? No, but it was worth it. Yeah. Your journey will be worth it too. Just keep going, keep doing. Great things will happen for you. I think we'll see you guys in the next podcast for sure. Yeah, definitely. My greetings and goodbye to you and Good luck. Thank you so much for watching. Please like, share, subscribe. And आपका कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट, फैमिली फ्रेंड आ रहा है तो उनको जरूर ये बताएं, जरूर शेयर करें। थैंक यू। thank you.